Yes, hello everyone. So till now we have discussed about functional requirement, non-functional requirement and goals of implementation. We have also discussed with example the functional requirement. Okay, that what it was. Whenever the requirement can be expressed in terms of functions or with the help of functions the requirement can be gathered. That is simply called as the functional requirements. Okay. Non-functional requirement was maintainability, security, reliability, okay, correctness. These were all which cannot be expressed in terms of functions, but they are required for any software. So those are requirements called as the non-functional requirement. Okay. Then we also discuss with the help of example also the functional requirement. Okay, so today what we will discussing the SRS template. What is SRS template? SRS template is basically it tells how the flow of SRS goes while developing the SRS. What are the headings or the points which are in the SRS? Okay, so first of all, these all are the chapters and this is the description of SRS. Okay, these are the chapters which are present in the our SRS, that is software requirement specification. Okay, so first one is the preface. In preface, what is written or what is told for the users or for the people or for the team who is going to develop the software. Actually, in preface, mainly the focus is on the version. Actually, only overview of the SRS is given in preface. ठीक है, जो हमारे वर्जन्स होते हैं कौन सा वर्जन चल रहा है, एक्चुअली होता क्या है देखो, एस आर एस एक डेवलप करी गई, फिर उसके बाद कुछ उसमें मॉडिफिकेशन की गई, फिर उसको मॉडिफाई किया गया, फिर उसमें कुछ रिक्वायरमेंट चेंजेस आए कस्टमर के तो फिर मॉडिफिकेशन किया गया. तो हाउ वी विल वी गेट हाउ द टीम विल नो दैट दिस इज अपडेटेड एस आर एस और नॉट. सो व्हाट दे डिड, वो क्या करते हैं कि इन द फॉर्म ऑफ वर्जन्स दे गोइंग टू मॉडिफाई द एसआरएस. तो वो सब जो भी मॉडिफिकेशन वगैरह अगर कभी हुआ है, पास्ट हिस्ट्री क्या है पर्टिकुलर एसआरएस की, किस वर्जन का है, तो ये सब चीज़ें किसके अंदर आती हैं, हमारे प्रीफेस के अंदर. ओके, नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन. इन इंट्रोडक्शन, नेक्स्ट चैप्टर हमारा होता है इंट्रोडक्शन. इसके अंदर क्या डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है, what are the main objectives going to be for the particular software, or we can say what are the functionalities which will be provided by the software to the user or for the customer. That is basically discussed or documented in the introduction part. Okay, next one is glossary. इसमें क्या होता है, ऑल द टेक्निकल टर्म्स. और एक्चुअली ये समझा जाता है कि मान लो यूज़र है या फिर टीम है जो डेवलप कर रही है सॉफ्टवेयर को, तो व्हाट दे हैव टू थिंक इज़ कि एवरी वन इज़ न्यू, नो वन नोज़ एनी टेक्निकल टर्म्स. तो इसके बेसिस पे इस चैप्टर के अंदर जो भी टेक्निकल टर्म्स यूज़ हो चुके हैं या होएंगे या होने वाले हैं, ठीक है, तो वो सारे टेक्निकल टर्म्स इसके अंदर हम डिस्क्राइब किए जाते हैं, इसके अंदर डिस्क्राइब किया जाता है या डिफाइन किया जाता है. ओके, या जो भी एजम्पशंस लिए गए हैं, ऑल दीज आर मेंशन्ड इन द glossary section. Next one is the user requirement definition. Basically all the requirement, that is functional non functional requirement का overview इस section में document किया जाता है. Next one is system architecture. In this chapter diagrammatically show किए जाते हैं functions को, how they are going to link up, और what we can say मॉड्यूल्स में भी ब्रेक किया जाता है ना, तो कि सॉफ्टवेयर को मॉड्यूल वाइज ही डेवलप करते हैं. तो बेसिकली यहाँ पर फंक्शंस जो हैं वो मॉड्यूल्स को इंटरलिंक करते हैं, कनेक्ट करते हैं, राइट.
फंक्शन की हेल्प से ही, तो उन सब को डायग्रामेटिकली शो किया जाता है विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस। ठीक है, ER डायग्राम वगैरह देखा होगा, उसमें ऐसे ही होता है ना, बीच में फंक्शन यूज़ होता है, इधर एक एंटिटी होती है, इधर एक एंटिटी है, तो डिफरेंट मॉड्यूल्स को किस फंक्शन के थ्रू अटैच या लिंक किया जा रहा है, तो ये सब चीज़ें डायग्रामेटिकली हम कहाँ शो करते हैं, सिस्टम आर्किटेक्चर पे। ओके, लिखा हुआ शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शंस अक्रॉस सिस्टम मॉड्यूल्स। ओके, नेक्स्ट वन इज सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। यहाँ पर अब एक बार डायग्रामेटिकली हम लोग शो कर चुके हैं हर चीज़, तो यहाँ पर जितनी भी फंक्शनल रिक्वायरमेंट हैं या नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं या गोल्स ऑफ कंपोनेंट्स जो भी हैं सारे इसके, उनको इन डेप्थ यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाएगा सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में। ओके, सिस्टम मॉडल्स में क्या करते हैं, जितने भी मॉड्यूल्स हैं सबके लिए हम लोग व्हाट मतलब हम लोग मतलब जो भी SRS डेवलप कर रही है टीम, सिस्टम मॉडल्स में क्या करेगी, पहले तो विच मॉडल इज़ गोइंग टू बी सुटेबल फॉर दिस काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, ये यहाँ पर डिसाइड होगा, प्लस DFDs यहाँ पर डेवलप होंगी। ठीक है, देख, डेटा फ्लो डायग्राम, डेटा मॉडल्स, ऑब्जेक्ट मॉडल्स, यहाँ पर मॉडल बनाए जाते हैं, फिर डायग्रामेटिकली भी यहाँ पर शो किया जाता है, और उनके बेसिस पे कंक्लूजन निकाला दिया जाता है विच इज़ द मॉडल गोइंग टू बी सुटेबल। और बाकी बेसिकली डिपेंड होता है टीम पर विच मॉडल इज़ दे आर गोइंग टू यूज़। नेक्स्ट इज लास्ट वन इज सिस्टम इवोल्यूशन। इसमें फ्यूचर स्कोप जो भी है SRS का फ्यूचर, वो सब सारी चीज़ें इसके अंदर डिस्कस होंगी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज अपेंडिसेस। अपेंडिसेस में क्या होगा, this should provide detailed specific information that is related to the application being developed। जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया उसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होगी यहाँ पर। लास्ट में इंडेक्स आता है हमारा, इंडेक्स में अल्फ़ाबेटिकली सब कुछ डिस्क्रिप्शन होगा, यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकली इंडेक्स होगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल टेम्पलेट है हमारा SRS का, ये मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है SRS टेम्पलेट। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ गुड SRS। ठीक है, SRS बन गई है तो हम लोग कैसे समझेंगे कि इट इज़ अ गुड, this is the important point. First one is concise. Concise means it should be not very huge, very large, it should be concise. At the same time it should be unambiguous. Unambiguous means, see there is written unambiguous means there should not be any ambiguity. Or we can say there should not be, unambiguous means dilemma टाइप चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है, जैसे कि कंपाइलर में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, मान लो 4+3 - 4 लिखा है। ठीक है, तो लेफ़्ट से स्टार्ट करना है कि राइट से स्टार्ट करना है, यहाँ पर डिलेमा आ जाएगा कंपाइलर को। बट तो दिस इज़ कॉल्ड एज एम्बिग्यूटी, दिस इज़ जस्ट वन एग्जांपल। तो SRS में कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कोई भी अपडेशन है तो उससे रिक्वायर्ड फंक्शन जहाँ जहाँ भी हैं उनमें सब पे अपडेट होना चाहिए। इट शुड बी कंप्लीट, इनकम्प्लीट नहीं होनी चाहिए। ओके, रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी हाई होनी चाहिए, उससे क्या होगा, एरर जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो डिक्रीज़ होंगी। ठीक है, और या फिर यहाँ पर देखो जो लिखा है कि इररेलेवेंट अगर डिस्क्रिप्शन रिड्यूस रीडेबिलिटी एंड ऑल्सो इंक्रीज एरर पॉसिबिलिटी। या फालतू के डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंटेशन फालतू का भी नहीं होना चाहिए, विच इज़ नॉट नेसेसरी, और अननेसेसरी चीज़ें नहीं डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। उससे क्या होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा डेवलपिंग टीम के लिए, हर बार उसको भी वो गो थ्रू करेंगे इम्पोर्टेंट समझ के, प्लस एरर पॉसिबिलिटीज़ भी इंक्रीज होंगी कहीं ना कहीं। ओके, नेक्स्ट वन इज इट शुड बी स्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड व्हाट इट मीन्स, लेट सपोज कुछ भी आपको मॉडिफाई करना है तो इट कैन बी मॉडिफाइड वेरी इजीली इफ इट इज़ your SRS is structured. If is it unstructured, what will happen, it will going to produce inconsistency in your SRS if it is unstructured. Okay,
नेक्स्ट इज ब्लैक बॉक्स व्यू। ब्लैक बॉक्स व्यू का मतलब क्या होता है? यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोडिंग भी बताई जाएगी। कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन का इससे कोई लेना देना नहीं है एसआरएस का। ठीक है, ब्लैक बॉक्स व्यू मतलब what the system is going to be perform on the basis of input, or on this input what the system should give as a output। ठीक है, कस्टमर की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, जस्ट फोकस ऑन दैट ओनली। ठीक है, स्पेसिफाई द एक्सटर्नली विजिबल बिहेवियर ऑफ द सिस्टम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज इंटीग्रिटी शुड बी मेंटेन। ओके, देन रिस्पॉन्स टू अनडिजायर्ड इवेंट। अनडिजायर्ड इवेंट मीन्स एनी एक्सेप्शन, अगर कोई भी एक्सेप्शन आता है उसको हैंडल भी करना चाहिए एसआरएस को। इट शुड बी एबल टू हैंडल दैट एनी एक्सेप्शनल इवेंट। ओके, लास्ट वन इज़ जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं जो भी डॉक्यूमेंटेड करी गई हैं एसआरएस के अंदर, इट शुड बी वेरीफिएबल। मीन्स इट इट मीन्स इट शुड बी वेरीफिएबल मीन्स जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं क्या वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मीट हो रही हैं कि नहीं। इट शुड बी वी शुड बी एबल टू डिटरमाइन दैट। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज वेरीफिएबल पार्ट। द नेक्स्ट इज प्रॉब्लम्स विदाउट ए एस आर एस डॉक्यूमेंट। अगर एस आर एस नहीं होगी तो प्रॉब्लम क्या आएगी? सब एक अब तो अपने आप आइडिया भी लगा सकते हो। कस्टमर नीड की अकॉर्डिंग डेवलप नहीं हो पाएगी एस आर एस सिस्टम। एस आर एस मीन्स अगर एस आर एस ही नहीं है तो जो हमारा सॉफ्टवेयर बन के ओवरऑल रेडी होगा, कहीं ना कोई मोस्ट चांसेस हैं, या फिर ये कहो 99% चांसेस हैं कि वो अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। बिकॉज इसके कई कारण हैं। आपस में कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगा सारी टीम्स में, कस्टमर इन्वॉल्वमेंट भी बहुत कम होगा। ठीक है, तो प्रोटोटाइप भी नहीं डेवलप कर सकते, एसआरएस दिखा भी नहीं सकते कि ऐसा ऐसा हम करने चाह रहे हैं। तो दैट इज़ वाई देर आर मोस्ट, or we can say most high probability of getting wrong developed software। ओके, देखो यही प्रॉब्लम, अब देखो कस्टमर की तो प्रॉब्लम आई ही, कस्टमर के अकॉर्डिंग डेवलप नहीं हो पाया, साथ में यहाँ पर प्रॉब्लम किसको है? डेवलपिंग टीम को भी है। दे आर नॉट गोइंग टू एग्जैक्टली नो वट दे हैव टू डेवलप। 100% वो श्योर नहीं होंगे कि ये कस्टमर को ये चाहिए ही कि नहीं चाहिए। क्यों? कस्टमर रफ आइडिया देगा, बेस्ड ऑन इट जब उसको इम्प्लीमेंट करने चलेंगे मैनी मॉडिफिकेशन हैव टू बी डन एट दैट टाइम। सो दे डोंट नो वेदर द कस्टमर वांट दिस और नॉट। हो सकता है लास्ट में कुछ और ही डेवलप हो जाए, रिक्वायरमेंट पूरी तरीके से फुलफिल हो कि ना हो। ठीक है, मेंटेनेंस पार्ट भी वेरी डिफ़िकल्ट हो जाएगा क्योंकि एसआरएस कुछ है नहीं, सीधे मॉडिफाई करेंगे कोड में। ठीक है, इट कैन इफेक्ट द फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम ऑल्सो। प्लस जो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है, लैब मैनुअल सॉरी जो मैनुअल्स रेडी होती हैं, डॉक्यूमेंटेशन पार्ट जो होता है, it is going to be very difficult for write the manuals of the software also if the SRS is not developed, right? Non functional requirement आप लोग जानते हो खुद ही। देखो अच्छा क्या होती है, the requirements which cannot be expressed in terms of functions of the system, that is called as the non functional requirement। जैसे कि reliability, performance issues, human computer interface issues, इंटरफेस विद एक्सटर्नल सिस्टम, लाइट चली गई। ठीक है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, लाइट होनी चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है बट फंक्शनल नहीं है, ये सिस्टम के फंक्शन पे नहीं है ना। ठीक है, वायरस अटैक आ गया, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, सिक्योर होना चाहिए उसको। ठीक है, सो दीज आर ऑल द रिक्वायरमेंट्स। प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट, एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट, तीन तरीके से नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट को यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया गया। प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट में प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट है, जैसे कि यूजेबिलिटी, इफ़िशियंसी, डिपेंडेबिलिटी। इफ़िशियंसी के अंदर भी दो चीज़ें दिखाई गई हैं, परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट, स्पेस रिक्वायरमेंट। ठीक है, प्रोडक्ट की सिक्योरिटी के बेसिस सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट, प्रोडक्ट की सिक्योरिटी भी होनी चाहिए।
ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, इन्वायरमेंट कंडीशन सुटेबल होना चाहिए, ऑपरेशनल कैसे ऑपरेट करना है, ठीक है, डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट हाउ टू डेवलप, एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट जो थर्ड पार्टी रिक्वायरमेंट होती है जैसे रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग बन रहा है कि नहीं, एथिकल रिक्वायरमेंट, ठीक है, लेजिस्लेटिव, अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट, सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स, प्रॉपर सेफ जोन में है कि नहीं जहाँ पर डेवलप हो रहा है। सो दीज आर ऑल द नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट वी विल बी गोइंग टू स्टडी द डिसीजन ट्री, जो हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।